Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Chapter number 6, Chemical Energetics. This is last lecture from this chapter. Topic of the lecture is Gibbs free energy. Student learning outcome which cover this topic are explain Gibbs free energy. एक और टॉपिक जो इसी लेक्चर में शामिल करेंगे, that is the relationship between the enthalpy change and the calorie content of the food. That is outline how enthalpy change relates to the calorie content of the food. ये दो टॉपिक हम जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है और जो फूड के कैलोरी कंटेंट और एंथैल्पी चेंज में क्या रिलेशनशिप है. Students, what is Gibbs free energy? Gibbs free energy is the measure of amount of usable or available energy of the system at constant temperature and pressure is known as the Gibbs free energy. किसी सिस्टम में अवेलेबल या यूजेबल एनर्जी फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है. इसको कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं and this G or free energy is equal to H minus TH. H is the enthalpy of the reaction, T is the temperature and S is the entropy. G is enthalpy minus product of temperature and the entropy of the system. Students, G is the Gibbs free energy. Delta G naught, it is Gibbs free energy change. Gibbs free energy change is a thermodynamic quantity that determines that whether a reaction can occur spontaneously at constant temperature and pressure. यानी ये एक ऐसी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जो जिससे ये मालूम किया जा सकता है कि क्या एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर कर सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर या नहीं. तो अभी हमने ये देखा कि जो जी जो है दिस इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. तो डेल्टा जी चेंज इन द फ्री एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा टी एस, or this will be equal to delta H naught minus ये डेल्टा टी एस मीन टी डेल्टा एस प्लस एस डेल्टा टी. हमने इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को वर्कआउट कर ली है, टी डेल्टा एस प्लस एस डेल्टा टी. तो एज रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयरफॉर डेल्टा टी इज ज़ीरो. तो डेल्टा टी जब ज़ीरो है तो ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. Our delta G naught or free energy change is equal to delta H naught minus T delta S. This equation for free energy change is known as Helmholtz equation. Student, ये free energy change, this is a state function. State function means that it only depends upon the initial and final state. It doesn't depend upon path followed by the reaction. डेल्टा जी नॉट या फ्री एनर्जी चेंज की एप्लीकेशन क्या है? नाउ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ डेल्टा जी डिटरमिन स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. डेल्टा जी से हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया कि एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है, और दूसरी बात क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर करेगा या नहीं करेगा. तो इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ़ डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज इज लेस दैन ज़ीरो आर इज नेगेटिव, देन what will happen? The reaction will be spontaneous in the forward direction. Number two, system will release the energy or it will be exothermic and system will move from the high energy to low energy state. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर जो है वो ज़ीरो से कम है या नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. Secondly, if delta G naught is greater than 0, then it will be positive and reaction, that is
if it is positive, then reaction will be non-spontaneous in the forward direction. System absorbs the energy or is endothermic, and system moves from the low energy to high energy state. और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ऐसी सूरत में रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर होगा। अब हम देखते हैं कि डेल्टा जी नॉट की मदद से हम फेज ट्रांजिशन या फेज चेंजेस कैसे स्टडी कर सकते हैं। कंसिडर द मेल्टिंग ऑफ आइस। वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। At melting point, delta G naught is 0. That is, solid and liquid phases are at equilibrium with one another at 0 degrees Celsius. Below melting point यानी below 0 degree Celsius यानी minus temperature पर delta G naught will be greater than 0 or delta G naught is positive यानी reaction is non-spontaneous in the forward direction. That is, below melting point, solid phase or ice will not melt, is more stable, और जो है ये क्या कहते हैं वाटर अलबत्ता ये फ्रीज कर सकता है। Whereas above melting point, when delta G naught is less than 0 or delta G naught is negative, then reaction is spontaneous in the forward direction। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस स्पॉन्टेनियसली जो है वो मेल्ट करती है टू फॉर्म वाटर, लेकिन वाटर फ्रीज नहीं करेगा क्योंकि ऐसी सूरत में लिक्विड फेज ज़्यादा स्टेबल है। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट एसओ लो, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड। Calorie content of the food is the measure of energy release when food is completely consumed in body through different metabolic process. Different metabolic process से जब फूड कंज्यूम होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो उसका कैलोरी कंटेंट कहलाता है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फूड इज मेजर्ड इन कैलोरी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फूड दैट इज मेजर्ड इन कैलोरी इज नोन एज द कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड। तो इसको वैसे किलो कैलोरीज में भी मेजर किया जाता है। अब इसका एंथैल्पी चेंज के साथ रिलेशनशिप क्या है? एंथैल्पी चेंज के साथ इसका रिलेशन स्टडी करने के लिए सपोज कीजिए कि फूड की डाइजेशन से जो है वो फूड की डाइजेशन से ग्लूकोज सपोज हासिल होती है। ग्लूकोज सेल के अंदर ऑक्सीडाइज करती है, यानी इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now, enthalpy change for this reaction, this is equal to minus 2803 kilojoule per mole. ये सपोज ये रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ द सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, then same amount of energy will be released। और उस एनर्जी को जो है वो अगर हम कैलोरी या किलो कैलोरी की यूनिट में हम जो है वो मेजर करेंगे तो वो एंथैल्पी चेंज जो है या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फूड वो अब क्या कहलाएगी? दैट विल बी नोन एज द कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रिलेशनशिप डेल्टा एच नॉट, इट मस्ट बी इन द यूनिट ऑफ किलो जूल पर मोल डिवाइड बाई 4.184। So when food is
Digested chemical energy stored in the food is released as heat energy. That is, same amount of energy is released when same amount of food is burned outside the body. Therefore, calorie content of food is same as enthalpy of combustion of food. और इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं? दैट इज बाय बॉम्ब क्लोरीमीटर.